Hello friends, we are going to start with the novel Man and Superman. Firstly, I'm going to give you the introduction about G.B. Shaw. He was the author of this novel, George Bernard Shaw, his full name. And in this video, you'll get to know about his full introduction, about the author, how you have to write an exam, everything was in details. With this video, you'll score good marks in exam. So please like, share and subscribe to my channel and share the video if you like it. Introduction of G.B. Shaw. George Bernard Shaw was born on July 26, 1856 in Dublin, Ireland, the son of a civil servant. ये जुलाई 26 को पैदा हुए थे 1856 में डबलिन आयरलैंड डबलिन एक जगह है आयरलैंड में ये एक बेटे थे किसके सिविल सर्वेंट के थे ऑल्दो ही वॉज बेस्ट नोन फॉर ड्रामाज इनके बहुत से फेमस ड्रामाज हैं नॉट ओनली मैन एंड सुपरमैन बट मेनी मोर लाइक John Saint John, Lions and the Brockles, and Brockle and the Lions, all these things. ठीक है, I'm not getting the correct name, but many dramas he wrote, and he was also proficient in the areas of journalism. जर्नलिज्म में बहुत ही फेमस थे प्रोफिशिएंट थे इंटरेस्टेड थे म्यूजिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर एज अ नॉवलिस्ट इन्होंने लिटरेचर में कदम रखा एज अ नॉवलिस्ट इन्होंने सोचा दैट दिस इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन फॉर मी उनको बहुत इंटरेस्ट था नॉवल ड्रामाज वगैरह सब कुछ लिखने में और बहुत सी फेमस भी हुई हैं He left school early, never went to university and was largely self-taught. इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और घर पे ही ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी भी कभी नहीं गए थे घर पे सेल्फ टॉट या फिर जो भी उनके एल्डर्स थे उन्होंने पढ़ाया Shaw attracted a fair number of female admirers and had relationship with several women. इनके बहुत सारे relationships थे बहुत सारे लोगों से attractions था and he married to Charlotte Penny Townshend in 1898 और फिर शादी हो गई थी इनकी in 1898 with Charlotte Penny Townshend. Then G.B. Shaw, George Bernard Shaw wrote dozens of plays मतलब बहुत सारे plays लिखे थे the most popular which remain widely known पर उनमें से कुछ जो बहुत से popular थे जो आज भी लोगों को मतलब लोग पढ़ते हैं जानते हैं और बीए ऑनर्स जो लोग कर रहे हों बीएलएड बीएड इन सब में उनके इंग्लिश में आता है लाइक मेरे कोर्सेज में तो आया है बीएलएड में इसलिए आप लोगों के लिए मुझे लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो आई एम मेकिंग जस्ट दिस वीडियो फॉर यू ऑल इन हिंदी देन द फेमस प्लेज वर मेजर बारबरा Man and Superman, Back to Methuselah, Saint John, Heartbreak House, and Rockles and the Lion. This was I was telling you, and most famously of all, Pygmalion, which was also inspired the musical My Fair Lady. Pygmalion बहुत ही famous है जो कि एक मतलब जिसकी स्टोरी है जिसमें वो जो बनाता है स्कल्प्टर होता है उसको अपनी स्टैच्यू से ही प्यार हो जाता है. This was also very famous novel of G.B. Shaw. Then Shaw used his plays to debate social issues and to change the world and want to change the world around them. इन्होंने मतलब सोशल इश्यूज फेस किए थे बहुत सारे और उन सबको देखते हुए अपने प्लेज में ये उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस देते हैं मैन एंड सुपरमैन से भी इन्होंने ऐसे ही किया है उस टाइम पे जो भी सिचुएशन रहती हो उस सेंचुरी में वो सब देखते हुए ये प्लेज लिखते थे He died in 1950. 1950 में death हो गई थी following complications attending a fall in his garden while pruning trees. कुछ complications भी थे इन्हें health problems थी और एक बार जब pruning means giving shapes to the trees or cutting the leaves तो जब गार्डन में ये सब काम कर रहे थे उस टाइम पे 93 की was 93 he left money उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी उसी टाइम कट बट करते वक्त और इन्होंने जो भी इनकी प्रॉपर्टी मनी थे वेल्थ थे उसे इन्होंने दे दिया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फोनेटिक अल्फाबेट कि एक नया फोनेटिक अल्फाबेट बन सके देन हियर कम्स द शॉर्ट description or summary about the play Man and the Superman. Generally, the play name is Man and Superman, but I have later here the Superman. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw wrote the play Man and Superman in 1903. 1903 में लिखा. His ideas on social and political issues are reflected in this play.
जो उनके आइडियाज थे, जो भी मतलब जैसा वो सोचते थे, जो उन्होंने देखा, सब कुछ सोशली पॉलिटिकली जो भी इश्यूज फेस करते थे, वो सब इस प्ले में डिस्कस किया, उसके बारे में लिखा. In Man and Superman, Shaw defines the roles of men and women in society and what he believes should be the ideal goals of individuals and governments. मैन एंड सुपरमैन में शॉ ने डिफाइन किया क्या क्या पर्टिकुलर रोल्स हैं मेन के एंड वुमेन के सोसाइटी के अंदर, एंड जो भी वो लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो भी उनके आइडियल गोल्स हैं, वो एक मतलब एक तरह से उनका गोल होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, वो उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा इस प्ले के थ्रू. ही प्रेजेंट्स द आइडिया दैट मैन इज द स्पिरिचुअल क्रिएटर. मतलब मैन जो है वो एक स्पिरिचुअल क्रिएटर है. इस दुनिया में जो मैन है उसका काम है क्रिएशन करना, क्रिएट करना, स्पिरिचुअल क्रिएट, एंड वुमेन इज द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. वेयर एज द वुमेन का जो काम है वो उससे बड़ा है, वो ह्यूमन ब्रेन्स क्रिएट करती है. ठीक है. Shaw writes that the life force demands. Here the word life force is a key word. ये आपको प्ले में भी मिलेगा. इसमें क्या होता है, लाइफ फोर्स डिमांड्स मतलब ये जैसे कहते नहीं है कि मतलब अ वुमेन नीड्स अ men to produce the offsprings. ठीक है. तो यहाँ पे लाइफ फोर्स उससे ही रिलेट किया गया है, डिमांड्स ऑफ बोथ जेंडर्स, दैट द ह्यूमन स्पीशीज कंटिन्यू मतलब जो स्पीशीज बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि लाइफ फोर्स डिमांड कर रही है. Shaw believed that human evolution through procreation was the means of advancing the self-consciousness and the self-awareness of the human being. Shaw ने बोला कि मतलब शॉ बिलीव, उनको लगता है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहा है, जो प्रोक्रिएशन हो रहा है आए दिन, एडवांसिंग द सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस पे भी फोकस होना चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस पे भी इंसानों का. ठीक है. तो मतलब यही सारे उन्होंने अपने थॉट्स और व्यूज लिखे हैं कि मैंने ये क्यों प्ले लिखा, क्या मेरा मोटिव है. तो यही उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है या समरी है. ठीक है. अब हम लोग प्ले की तरफ बढ़ते हैं. मैन एंड द सुपरमैन में आखिर ऐसा है क्या, समरी क्या है उसकी, अब डिटेल में पढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉर्ज बर्नेट शॉ कौन थे, कब बॉर्न हुए, कब उनकी डेथ हुई, एंड अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज लाइफ. Now we are going to read about the play. Sorry, novel. No. I'm covering the characteristics also. That is about modern drama because G.B. Shaw was the famous novelist of the modern drama. During modern drama, he was so famous. तो पहला जो characteristics are very important because in many exams I have seen that the modern drama characteristics are being asked by the students कि लिखिए. तो जल्दी ये गूगल पे भी अवेलेबल नहीं होते, मतलब मिलते नहीं है डिफाइंड वे में, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसको ढूंढने में. बट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. सो हियर फर्स्ट इज रियलिज्म. रियलिज्म मतलब जो रियलिटी थी वो मॉडर्न ड्रामास के थ्रू दिखाई जाती थी. रियलिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फीचर. रियलिज्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, काफी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फीचर है अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट. जो पहले के 20th सेंचुरी, उसी को मॉडर्न ड्रामा कहते हैं, वहाँ के जो ड्रामेटिस्ट थे हु सॉट टू एड्रेस, जो मतलब देखते थे, हु सॉट टू एड्रेस कि क्या करते थे, अपने जो रियल लाइफ इश्यूज होते थे उसको वो अपने प्लेज में, अपने वर्क्स में, अपने ड्रामाज में उसको रियलिस्टिक वेज में प्रेजेंट करते थे, लिखते थे. देन रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म नाम से ही लग रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता है कि मतलब मेल एंड फीमेल में जो भी लव होता है, प्यार होता है दो लोगों में, कपल्स के बीच में. नॉट ऑफ दैट only I'm talking about romanticism means romantic period, romantic phase. It can be a love for nature, love for creature, love for God, anything. ठीक है. तो the early 20th century dramatists were mostly realist. मतलब जो मॉडर्न टाइम के ड्रामेटिस्ट थे वो बहुत ही रियलिस्ट थे, नेचुरल थे, रियल थे. बट as time passed, जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो न्यू मूवमेंट ऑन मॉडर्न ड्रामा इमर्ज्ड, दैट इज रोमांटिसिज्म. तब एक नया मूवमेंट आया मॉडर्न ड्रामा में जिसको हम लोग कहते हैं रोमांटिसिज्म, मतलब प्यार, रोमांटिक फेज, जिसमें आपको लव दिखाया गया है बहुतों के बीच में, कपल्स के बीच में, फॉर नेचर, फॉर गॉड, फॉर मेनी वन. ठीक है. तो उससे रिलेट किया गया है रोमांटिसिज्म. देन द थर्ड वन इज पोएटिक प्लेज. पोएटिक से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि पोएटिक मतलब होता है जो पोएम से रिलेटेड होता है. पोएम्स कैसे लिखे जाते हैं, स्टैंजास के फॉर्म में, उसमें एक राइमिंग होती है,
इसी तरह इन द सेम वे कुछ फेमस ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम पे, जैसे टी एस एलियट हो गया, वाज अ मेजर ड्रामेटिस्ट हु एम्फसाइज्ड पोएटिक प्लेस, जिन्होंने पोएटिक प्लेस पे वर्क किया, वाज द कंटेम्प्रेरी थिएटर्स रियलिस्टिक प्रोज ड्रामा, और एक मतलब एक अलग सी पहचान खड़ी कर दी लोगों के बीच की पोएटिक प्लेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और लिखना स्टार्ट किया जिसमें इसमें मतलब ये होता है कि जो प्ले होता है वो आपके पोएटिक कंडीशन में मतलब फॉर्म में लिखा होता है, स्टैंजास के फॉर्म में, या आपके प्ले में राइमिंग होगी, बस इसका यही मतलब है. देन कम्स प्लेज ऑन हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज. हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज से हमें ये पता चल रहा है कि मतलब कुछ भी हम लोग के मुगल्स या कोई किसी ब्रिटिशर्स की भी हिस्ट्री हो वो लिखी जाती थी. बायोग्राफी किसी भी फेमस इंसान की बायोग्राफी हो उसके बारे में हम लोग लिखकर या प्रेजेंट कर देते अपने ड्रामाज में, प्लेज में. तो इसी तरह another noticeable tendency in modern English theatre is the use of history and biography as dramatic techniques. एक वहां पे एक टेक्निक यूज होने लगी कि मतलब हिस्ट्री और बायोग्राफीज पे हम लोग प्ले बनाएंगे. इन मॉडर्न ड्रामेटिक राइटिंग इस फेज में देयर आर मेनी वंडरफुल हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल फेज. उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल फेज थे, मतलब प्लेस थे, ड्रामास थे जो काफी फेमस हुए. तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा होगा. उसके बाद मतलब उसमें ये था मर्डर इन द कैथेड्रल, आपने पढ़ा ही होगा. बायोग्राफी और हिस्ट्रीज प्ले वो बहुत ही फेमस हुआ था. was written by T.S. Eliot, I think, and these were the plays were very famous during modern drama. फिर उसी तरह एक्सप्रेशनिज्म था, इम्प्रेशनिज्म था. एक्सप्रेशनिज्म जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो पब्लिक के सामने इन द थिएटर, इम्प्रेशनिज्म उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पे. So that were the characteristics. Now we are moving forward towards our summary plot of the play, that is Man and Superman by G.B. Shaw. So this play was written by George Bernard Shaw in 1903. Man and Superman is a 4-act play, dramatic work that functions as a response to urgings by Shaw's contemporaries to write a Don Juan type play. मतलब ये जो वर्क है वो फंक्शन करता था किसके रिस्पॉन्स पे, एक मतलब ये बहुत ही इंस्पायर हुए थे. एक डॉन जुआन था, वो एक काइंड ऑफ वुमेनाइजर था हु यूज्ड टू सेड्यूस द वुमेन्स. मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही फेमस था वो. द हिस्टोरिकल फिगर डॉन जुआन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. ये काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बन गया बहुत से ऑथर्स के लिए ड्यूरिंग मॉडर्न एरा, एंड एज अ नेम इट इज सिनोनिमस विद द वर्ड वुमेनाइजर. ठीक है. With this in mind, Shaw's work carries a Don Juan theme but with philosophical underpinnings. तो इसी तरह शॉ के दिमाग में भी आया कि हम इसको लेकर एक प्ले क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे philosophical underpinnings होंगे. So the first performance of Man and Superman in 1905. तो पहली परफॉर्मेंस इसकी 1905 के साल में हुई at the Royal Court Theatre in London. ये रॉयल कोर्ट थिएटर था लंदन में. डिड नॉट इंक्लूड द थर्ड एक्ट. वहां पे थर्ड एक्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस एक्ट में बहुत सी सामान चाहिए थी, बहुत सी चीजें चाहिए थी, और मतलब उसको काफी नेचुरल दिखाते हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी उस स्टेज पे शो करना. तो वो सीन नहीं हुआ था. बाकी सारे एक्ट हुए थे, मतलब सब हुआ था एक्सेप्ट एक्ट 3. दो सब्सिक्वेंट परफॉर्म्ड एज अ सेपरेट प्ले. एज अ होल, Man and Superman questions the nature of love and whether a married man can remain a revolutionary or if he will stagnate with domestic life. तो इस प्ले के थ्रू इन्होंने मतलब परफॉर्म किया, एक सेपरेट प्ले दिखाया, अलग से दिखाया था एक्ट 3. वहां पे यही डॉन जुआन का ही सीन था, हेल का. मतलब एक सीन आता है इसमें जब वो जाकर मिलता है उस इंसान से, वहां पे सपने वपने देखता है, तो वहां पे थोड़ा सा उस टाइप का रियलिस्टिक वे में दिखाना था, तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी, बट बाद में इसको अलग से प्ले करवाया गया. तो फिर एज अ होल मैन एंड सुपरमैन इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि नेचर ऑफ लव एंड वेदर अ मैरिड मैन, कि मतलब एक मैरिड इंसान, एक आदमी जो इन रिवोल्यूशनरी, मतलब रिवोल्यूशनरी यहाँ पे ये यूज किया गया, मतलब पहले तो इंसान फ्री होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट शादी के बाद उस इंसान पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी वाइफ की होती हैं, उसकी बेबी की होती हैं, फैमिली की होती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. तो in this play there is one character that is Mr. Tanner. तो वो मतलब रिलेट करते हैं, उनसे रिलेट
किया गया है, उनको शादी करना पसंद नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है मैरिज में, तो वो बिल्कुल अलग से इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है। तो यहीं पे वही क्वेश्चन राइज होता है कि डोमेस्टिक लाइफ वगैरह में फंस जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। देन a play starts. The setting is a study in Portland Place. पोर्टलैंड प्लेस में स्टार्ट हुई, लंदन। ऑन स्टेज, अभी स्टेज पे रोबर्ट रैम्सडीन है। यहाँ पे रोबर्ट रैम्सडीन एक कैरेक्टर है, अ रादर एल्डरली मैन, बड़ा आदमी है, ऑफ अफ्लुएंस एंड अफेयर्स, जिसके काफी अफेयर्स रह चुके हैं। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, ये एक यंग पोएट है, इज अनाउंस्ड बाय द मेड आकर बताती है, ये अपीयर्स ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सूट ऑफ मॉर्निंग। एक सीन चल रहा होता है जहाँ पे मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ हुई रहती है, तो सब उनसे आए होते हैं मिलने, तो यहाँ पे सब एलिगेंट सूट ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब एक वैसी एनवायरनमेंट, सैड सी जगह जहाँ पे सब रोते धोते हैं, वही वही एक्टिविटी कर रहे हैं अभी। ऑक्टेवियस बेनिफैक्टर एंड फ्रेंड, और जो यहाँ पे ऑक्टेवियस है, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, ये इनका एक बेनिफैक्टर फ्रेंड है मिस्टर वाइटफील्ड का। Mr. Wildfield is dead and his will indicates that his daughter Anne should be left in the care of two men. वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है और उनका एक विल है जिसमें वो इंडिकेट करते हैं कि जो उनकी बेटी है वो दो लोग के केयर में होनी चाहिए, एक तो रोबर्ट रैम्सडीन एंड जॉन टैनर। रोबर्ट रैम्सडीन बताया मैंने काफी बड़े होते हैं और जॉन टैनर उनसे एज में काफी छोटे होते हैं, तो इन लोग के थॉट्स में भी बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि जनरेशन का गैप होता है एक। जॉन टैनर ऑथर भी रह चुके हैं रेवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक के। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम्स कि मतलब जॉन टैनर ने कौन सी बुक लिखी थी। देन रैम्सडीन डिस्ट्रस्ट जॉन टैनर। रैम्सडीन थे जो जिनको मतलब जॉन टैनर पे भरोसा नहीं था। एंड एलोक्वेंट यूथ एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जिनके बहुत ही अलग से आइडियाज थे, थॉट्स थे। एंड इज क्लोजर टू टैनर्स एज एंड द टू आर ओल्ड फ्रेंड्स एंड हु हैव हैड अ फॉलिंग आउट। एन जो होती है ये मिस्टर वाइटफील्ड की बेटी होती है, ठीक है, एन एंड रोडा, दो बेटियां होती हैं। तो ये जॉन टैनर को काफी लाइक कर रही होती है और फ्रेंड्स भी होते हैं ये लोग पहले, जो जिनसे फिर बाद में एन को और थोड़ा सा फॉन्डनेस हो जाता है टैनर की तरफ। दिस इज पर्टिकुलरली शॉकिंग बिकॉज टैनर्स क्लोज फ्रेंड ऑक्टेवियस इज इन लव विद एन। ये थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए होता है क्योंकि जो वहां पे जो ऑक्टेवियस रिवेंजन हमने ऊपर डिस्कस किया वो भी एन को पसंद कर रहा होता है और काफी उसका क्लोज फ्रेंड होता है, ठीक, बट एन नहीं कर रही होती है विद एन एंड एक्सपेक्ट्स टू मैरी हर। और यहाँ पे जो ऑक्टेवियस होता है वो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए एन से, एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ दीज मेन टू बी हर गार्डियन insists that they work together to care for her as her father wished. तो वो कहती है कि मुझे एक गार्डियन की जगह आप, वो उनको इंसिस्ट करती है कि मतलब मेरे साथ रहें, मेरी केयर करें जैसे मेरे फादर चाहते थे। एंड्स मदर मिसेस वाइटफील्ड जो उनकी मदर होती हैं इज प्रेजेंट एज वेल, वहां प्रेजेंट होती है, बट शी इज अ somewhat weak-willed person who tends to cave to her daughter's intense behaviors. जो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब ग्रोथ इतनी अच्छी थी ना, काफी जो एजुकेटेड भी नहीं होती, वीक विल्ड होती है, जो केयर नहीं कर पाती उनकी डॉक्टर की, और उनका बिहेवियर भी उनके कंट्रोल में नहीं होता, कैसे ये लोग बिहेव कर रही हैं, बस देखती हैं शांति से खड़ी रहती हैं। वायलेट रॉबिन्सन, वायलेट रॉबिन्सन जो है वो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की बहन है, वो इंट्रोड्यूस हुई है अब इस प्ले में। हैज मैरिड, उसकी एक शादी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर जब प्रेग्नेंट होती है तो वो लेटर में लिख के बताती है अपने हस्बैंड को, जिसका नाम होता है हेक्टर मेलॉन जूनियर। ये बेटा होता है किसका, हेक्टर मेलॉन सीनियर का, ठीक है। तो क्या होता है जब वो लेटर भेजती है तो लेटर मिस्टेकनली डिलीवर टू हिज फादर, गलती से वो डिलीवर हो जाता है किसको, उसके पापा को, हु शेयर्स द सेम नेम, जिनका सेम नाम होता है, दैट इज हेक्टर मेलॉन सीनियर। तो वहां पे वो सीन, वहां पे एक्ट थोड़ा सा क्लोज कर दिया जाता है। फिर क्या होता है दूसरे एक्ट में दिखाते हैं कि आफ्टर दिस इनिशियल पीरियड ऑफ एक्सप्लोसिव ड्रामा, काफी ड्रामा और कंफ्यूजन सबके बाद जब बाहर आते हैं, टैनर लीव्स इंग्लैंड विद हिज शॉफर हेनरी स्ट्रेकर। हेनरी स्ट्रेकर जो होता है वो किसका शॉफर होता है, शॉफर वहां पे यूज किया जाता है टर्म फॉर ड्राइवर्स, ड्राइवर्स केयर टेकर्स, ठीक है। तो वहां पे ये शॉफर यूज करते हैं दिखाने के लिए, जो कि और भी सारे काम करते हैं एक्सेप्ट इन ड्राइविंग। Among other things, Tanner, who believes that romance and women will drain his energy and independence, wants to escape Anne's romantic pursuits.
इन सब के बावजूद भी टैनर तो पहले से उसका थॉट मैंने आपको बताया ही कि कैसा रहता है। उसको लगता है कि जो रोमांस है, प्यार है, लड़कियां हैं, औरतें हैं, वुमेन विल ड्रेन हिज एनर्जी, इंडिपेंडेंस, वो सब उसका जो एनर्जी है, ताकत वाकत है बॉडी की, एनर्जी और भी सेंस में बातें की गई है, और इंडिपेंडेंस है, आजादी है, वो सारी चली जाएगी लड़कियों के चलते। तो वो सबकी बिल्कुल सबसे अलग होना चाहता है, फ्री रहना चाहता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, थोड़ा सा अलग जाता है, वॉन्ट्स टू escape एंड रोमांटिक परस्यूट्स। ठीक है, तो वहां से वो बच के जा रहा होता है। एंड herself spins an elaborate series of lies in an attempt to get Tanner to invite her on his trip, but ultimately doesn't succeed and the two are separated while Tanner goes to Spain. ये लोग प्लान करके निकलते हैं कि हम लोग चलते हैं घूमने साथ में। सो आन का रहता है कि साथ में घूमने जाएंगे और उससे मैं टैनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, साथ में फ्रेंडशिप बढ़ा पाऊंगी और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो निकलते हैं साथ में घूमने के लिए। फिर क्या होता है, मतलब उसको, टैनर को तो अलग ही होना होता है, तो वो अलग हो जाता है झूठ बोल के, अपना रास्ता मतलब ड्राइवर को बोलता है कि इधर टर्न ले लो। और एक बार उसको स्ट्रेकर बोल भी देता है कि एन शायद आपको लाइक करती है, तो इस वजह से वो और थोड़ा सा अपने आप को अलग करना चाहता है। तो वो स्पेन की तरफ चला जाता है। जब स्पेन की तरफ जा रहा होता है, जब वहां पहुंच जाता है इन स्पेन, टैनर एंड स्ट्रेकर आर अबडक्टेड, किडनैप हो जाते हैं किसी भी तरह, मतलब somewhat a ridiculous crew. Tanner quickly befriends his kidnappers. Sorry, ridiculous crew of would-be revolutionaries led by a charismatic man named Mendoza. अब यहाँ पे मेंडोजा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है कि स्पेन जाते हैं, स्पेन में गए, ठीक, तो उनका ड्राइवर और जो टैनर होता है वो दोनों किडनैप हो जाते हैं, अबडक्टेड बाय समवॉट, ठीक है, प्लान ऑफ दस मेंडोजा। मेंडोजा वहां पे एक डाकू टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वहां पे काफी खतरनाक इंसान होता है जो लोगों को किडनैप करता है। टैनर क्विकली बिफ्रेंड्स हिज किडनैपर्स, पर टैनर डरता वरता नहीं है, वो मेंडोजा से बातचीत करता है और उससे दोस्ती कर लेता है। टैनर सीज दैट मेंडोजा हैज नो रियल इंटरेस्ट इन सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। देखता है टैनर कि मेंडोजा को कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में। वाइल स्पेंडिंग द नाइट इन मेंडोजा's कैंप, फिर जब वो रात में सो रहा होता है मेंडोजा के कैंप में, वन इवनिंग मिस्टर टैनर इन द कंपनी ऑफ रॉबर्ट्स एंड थीव्स विद लिवली पॉलिटिकल व्यूज। फिर शाम को वो, मतलब रॉबर्ट्स, कंपनी ऑफ रॉबर्ट्स, चोर चोर डकैत की कंपनियों में वो रहता है, सपना देखता है, ड्रीम्स अबाउट एन इनकारनेशन ऑफ डॉन जुआन। किसके बारे में, फिर आ गया ना डॉन जुआन का कैरेक्टर, द फेमस वुमेनाइजर। ये काफी फेमस वुमेनाइजर होता है, एंड here's his explanation that for the wicked he is actually not so bad. इसका कैरेक्टर काफी अच्छा नहीं होता डॉन जुआन का। तो वो एक बार अपने आप को सपने में इमेजिन करने लगता है कि मैं डॉन जुआन बन गया हूँ, वुमेनाइजर हो गया हूँ, मतलब मैं सेड्यूस कर रहा हूँ वुमेन्स को, ये सब सोचने में मुझे लगता है। मैनेज एक्सप्लेन्स द डॉन इज अ टेरिबल इंस्टीट्यूशन। शादी से पता चलता है कि डॉन जो है एक काफी टेरिबल, डरावना इंस्टीट्यूशन है, रूइनिंग द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग सुपर ह्यूमन, जो कि खत्म कर रहा है सुपर ह्यूमन बनाने में। सुपर ह्यूमन यहाँ से वो सुपरमैन वाला नहीं रिलेट किया गया है कि जो उड़ रहे हैं हवा में लोगों को बचा रहे, नहीं। सुपर ह्यूमन यहाँ से उस इंसान से रिलेट किया गया है जो कि मतलब एक सोसाइटी में जो एक अच्छा इंसान होता है, जिसको काफी अच्छे मैनर्स होते हैं, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, अच्छे से बात करता है, लव और रिस्पेक्ट दिखाता है टुवर्ड्स अदर्स, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। डॉन जुआन's womanizing was the result of women's scheming for women made him believe that he loved each of them, had become their prey. डॉन जुआन था, वो ये दिखाया, उसका रिजल्ट आया कि जो वुमेन्स की स्कीमिंग है औरतों के लिए, वो काफी मतलब बिलीव दैट ही लव्ड ईच ऑफ देम, वो सबसे प्यार करता है, हैड बिकम देयर प्रे, वो सबके मतलब प्रे बन गया काइंड ऑफ सब सारी वुमेन्स का। मिस्टर टैनर अवेक्स, फिर वो सारे ड्रीम सब कुछ इमेजिन करने के बाद जगता है उससे, ठीक है, फ्रॉम द ड्रीम, स्टिल अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मैरिंग एन वाइटफील्ड। और अभी भी उसको जो मैरिज है उससे उसे नफरत ही है, वो शादी नहीं करना चाहता एन वाइटफील्ड से। When Tanner wakes, जब वो उठता है, the other have to come to rescue him. And Ramsden, Octavius, Violet and Milan. जगता है तो उसे ढूंढते ढूंढते एन बताती है रास्ता, उसे फील होता है शायद इधर गया हो, तो उसकी वजह से हम टैनर को ढूंढ पाते हैं।
फिर जब जगता है तो सबको देखता है कि सब मुझे बचाने आए हैं। वहां पे सब रैम्सडीन, ऑक्टेवियस एंड वायलेट, मेलॉन सब प्रेजेंट होते हैं। एंड इज पर्टिकुलरली ईगर टू टॉक टू हिम एंड हेल्प हिम एस्केप हिज कैप्टर्स। एंड बहुत घबराई हुई रहती है और मतलब इगरली, बहुत ही मतलब अंदर से उसको चाह रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको बचा पाऊं, उससे बात कर पाऊं, उससे लेके यहाँ से गायब हटूं, यहाँ से छुपा लूं, मतलब इसे बचा लूं जो यहाँ पे इन्होंने कैप्टर्स ने इसको रेस्क्यू किया हुआ था। However, पर Tanner makes sure that Mendoza and his men aren't arrested or punished, identifying them as friends and escorts. पर टैनर जो है मतलब उनसे थोड़ा सा क्लोज हो गया था, चाहता नहीं था कि मेंडोजा और उसके जो भी मतलब मेन थे वो सब अरेस्ट हो, उनको कोई पनिश करे। तो वो बोलता है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कि ये लोग मतलब थीव्स या रॉबर्स नहीं है, दीज आर माय फ्रेंड्स, वो बताता है उन्हें। तो उनको बचा लेता है काइंड ऑफ, मेंडोजा वगैरह को। मिलॉन्स फादर, फिर क्या होता है, मिलॉन्स फिर बात खत्म होती है, सब वहां से जा रहे होते हैं, तब तक जो मिलॉन्स फादर होते हैं, इनका क्या नाम मैंने बताया था, हेक्टर मिलॉन सीनियर, ठीक है, जूनियर इनका बेटा होता है, सीनियर इनके फादर होते हैं। एन आयरिश अमेरिकन बिजनेसमैन ऑल्सो नेम्ड हेक्टर मिलॉन अराइव्स इन इंग्लैंड। आ जाता है, ये आयरिश अमेरिकन बिजनेसमैन होता है, आता है। ही कन्फ्रंट्स बोथ वायलेट एंड हिज सन हेक्टर, उन दोनों से मिलता है और उन्हें मतलब बोलता है कि मतलब ही फर्स्ट ही डिसअप्रूव्स ऑफ द मैरिज बिकॉज ही शी कम्स फ्रॉम। पहले तो जो इनके फादर होते थे, हेक्टर मिलॉन जूनियर के जिनके फादर थे, उनको वायलेट और हेक्टर मिलॉन जूनियर की शादी पसंद नहीं थी, वो चाहते नहीं थे हो। क्यों? क्योंकि जो वायलेट रोबिन्सन थी वो काफी डिफरेंट सोशल क्लास से थी, मतलब उसका सोशल बैकग्राउंड काफी लो था, वीक था। बट ये तो काफी बड़े बिजनेसमैन थे, वो चाहते नहीं थे इतने छोटी क्लास में हमारी शादी हो बेटी की। तो मेलॉन गिव्स देम हिज ब्लेसिंग, बट फिर उसके बाद वो आए थे और वहां पे तैयार हो गए थे, Hector Malone Sr. and his blessings once he realizes that Violet is the perfect woman for his son. उनको जब एक बार रियलाइज हुआ कि वायलेट काफी अच्छी लड़की है, भले ही उसका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, बट शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी गुड वुमेन, ब्यूटीफुल। तो वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, तुम दोनों शादी करो विद माई ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये सीन भी अच्छा जाता है, वहां पे टैनर मिल जाता है, इन लोग की शादी हो जाती है। देन ऑक्टेवियस, फिर ऑक्टेवियस को लगता है कि नाउ दिस इज अ टाइम आई हैव टू कन्विंस एंड टू गेट मैरिड विद मी। मतलब उसे कन्फेस करता है, अपना प्यार दिखाता है एन को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड शी टर्न्स हिम डाउन सेइंग, बट एन उसे मना कर देती है। क्यों मना कर देती है, क्या कहती है? कहती है दैट हर मदर वांट्स टू मैरी टैनर एंड दैट हर फादर इंस्ट्रक्टेड हर टू डू सो इन हिज विल, कि उसकी मम्मा ने बोला है किससे शादी करो, टैनर से। क्यों? क्योंकि एन खुद टैनर को पसंद कर रही होती है, और बोल दिया कि और उसके ऐसा फादर भी चाहते हैं, उन्होंने ऐसा विल में, जो उनका विल था, जो वो चाह रहे थे मरते वक्त, उन्होंने जो बताया था वैसा उन्होंने लिखा है। तो ऑक्टेवियस पीछे हट जाता है, वो उसको फिर कन्विंस नहीं करता, स्टिल कन्विंस दैट एन लव्स हिम। फिर उसको ऐसा लगता है कि एन भी उससे प्यार करती है, पर वो मम्मा और पापा के विल की वजह से पीछे हट रही है। believes that this is an example of her self-sacrificing nature, कि मतलब वो मुझसे प्यार करती है पर फिर भी वो इतनी अच्छी लड़की है कि अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है। उसको फिर और उससे प्यार हो जाता है। Tanner claims that he has no desire or plan to marry Anne or to marry at all, पर जो वहीं दूसरी तरफ टैनर होता है, वो अभी भी नहीं तैयार होता है एन से शादी करने के लिए। उसको मना कर रहा होता है कि मुझे शादी अभी भी नहीं करनी है, not to marry at all. Then Octavius is such a romantic that he'd be happier, heartbroken and single than faced with the day-to-day realities of marriage. पर Octavius जो होता है आज भी बहुत ही रोमांटिक होता है, और खुश होने जो मतलब खुशी खुशी, हार्ट ब्रोकन मतलब उसको, उसका दिल भी टूटता है पर वो खुश रहता है और चाहता है अब मैं जिंदगी भर सिंगल ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो रियलिटीज ऑफ मैरिजेस फेस करता है, देखता है, और प्यार में भी रहता है। किसके साथ? एन के साथ। Tanner begins to fret that social pressure will force him to agree to marry Anne against his principle. टैनर को थोड़ा सा फिर बाद में यूं लगता है कि सोसाइटी भी फोर्स कर रही है कि मतलब एन से शादी करो, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर भी बोल रहा है कि कर लेता हूँ। ही ऑल्सो डिस्परेटली वॉन्ट्स टू मैरी एन, फिर उसको भी अंदर से हो जाता है कि ठीक है मैं एन से शादी करूंगा। एन एन भी काफी मतलब ब्यूटीफुल लड़की होती है, काफी सॉफ्ट हार्टेड अच्छी होती है। When he objects to her pursuit, she uses his own philosophy to convince him.
जब वो मतलब ही ऑब्जेक्ट्स हर परस्यूट, जब वो मतलब मना कर रहा होता है या ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा होता है, तो वो अपने खुद की फिलोसफी से टैनर को कन्विंस करना चाहती है। क्या कहती है? टेलिंग हिम दैट द लाइफ फोर्स हैज ड्राइवन देम टुगेदर, कि मतलब जो लाइफ फोर्स है, मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी, लाइफ फोर्स डिमांड्स, वो उसी का यूज करके यहाँ पे बोलती है कि हम लोगों को इसीलिए साथ लेकर आए, अकॉर्डिंग टू टैनर्स ओन थ्योरी। बट थ्योरी के अकॉर्डिंग, टैनर की खुद की, द लाइफ फोर्स कॉजेस वुमेन टू परस्यू मेन फॉर देयर ओन नीड्स एंड शी टेल्स हिम ही इज नो एक्सेप्शन। वो कहता है कि जो लाइफ फोर्स है, इसमें वुमेन्स खुद ही परस्यू करती हैं किसको? मेन को, फॉर देयर ओन नीड्स, अपने खुद के ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, फॉर मेकिंग क्रिएटिंग सुपर ह्यूमन, सुपरमैन। ठीक है। एज द टॉक, टाना कन्फेसेस हिज लव फॉर एन। बातों बातों में टानर अपना प्यार कन्फेस कर देता है एन के सामने, एंड अनाउंस देयर प्लान्स टू मैरी, और अपनी शादी की जो प्लानिंग होती है सबसे अनाउंस करता है। एंड एविडेंटली finds this announcement charming, and Tana's words are met with light-hearted celebration and laughter as the play concludes. Themes of plays, फिर क्या होता है कि मतलब एंड होता है यहीं से कि उन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों मतलब सेलिब्रेट करते हैं। एंड में टैनर के जो थॉट्स होते हैं वो हट जाते हैं और एन से अग्री कर जाता है शादी के लिए। तो फिर उन लोगों की शादी हो जाती है, तो यहीं पे एक्ट खत्म होता है। देन जो थीम्स होते हैं, कुछ स्पेशल थीम्स हैं मैन एंड सुपरमैन की, इंक्लूडिंग सेक्स। सेक्स का दिखाया गया है कि मतलब जो लाइफ फोर्स डिमांड्स यहाँ पे यूज की गई है वो फॉर द सेक्स ओनली। द रोल ऑफ सुपरमैन, की मतलब सुपरमैन कौन होते हैं, सुपरमैन का रोल क्या होता है, एंड मॉरल करप्शन।